है सर, विजिबल है। बस उसको इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा और उसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। जब यस, इसको मिनिमाइज कर दीजिए सर। इसको चाहे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए इसको। सर ये नीचे चला जाएगा। हाँ, नीचे इसको कर दीजिएगा। अभी दिख रहा है सर? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा है, अभी वो बंद हो गया। अभी दिख रहा था सर। वो उसको फुल स्क्रीन में कर दीजिए सर। ओके। यस यस सर, यस प्रेजेंटेटर में हो सर। यस सर। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है सर। यस, डॉक्टर शांति। Okay. So let's start the session. Ashish sir, may I start the session? हाँ, स्टार्टिंग उनको सर एक बार कर दीजिए, फिर इसके थोड़ा वॉइस स्लो आ रहा है मैम, थोड़ा सा माइक नजदीक कर लीजिएगा। Okay. सर अभी सुनाई दे रहा है? अभी ऑडिबल है? यस यस। हाँ जी मैम, अभी ठीक है सर। ओके जी। ओके सर, मैं सेशन स्टार्ट कर सकती हूँ? यस यस यस, प्लीज गो अहेड। Namaskar and good morning one and all. This is Dr. Shanti R. Nair on behalf of Vishwa Ayurved Parishad Agatantra Sambhasha team and with the support of Dr. Dilip Goswami sir, the convener, on the occasion of World Cancer Day. It is our privilege to introduce today's esteemed speaker, Dr. Anant Rao Patil sir, a renowned Ayurvedic oncologist and an eminent clinician, researcher in the field of integrative cancer care. Dr. Anant Rao Patil sir has 11 years of clinical experience and is the founder of Dr. Patil Sons Wellness Clinic, Pune, where he has treated more than 10,000 cancer patients using classical Ayurvedic principles. Sir has a strong academic and research background with over 8 years of experience in cancer research, serving as a principal investigator and co-investigator in clinical studies related to cancer and Ayurveda. He is the author and co-author of more than 30 national and international research publications and presented his work in several prestigious conferences. So, and he is also an active member in the international oncology organizations, reflecting his commitment to global academic collaboration. So today, Dr. Anant Rao Patil sir will be sharing his valuable insights on the topic Ayurvedic anti-toxic approach in cancer management, a subject of immense relevance in today's understanding. So we warmly welcome Dr. Anant Rao Patil sir and look forward to an enlightenment and thought-provoking session. Sir, may I kindly request you to take over the session? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. Yes sir. Yeah. Thank you so much, ma'am, for brief introduction. Thank you, sir. And thank you, entire team, for giving me opportunity to present clinical work in cancer on the occasion of World Cancer Day. So today, actually, it is privilege for me to present my work on the occasion of World Cancer Day. So we will start today's session. So before going forward, I would like to introduce or give introduction about the cancer. So let me ask a question to you. What do you mean by cancer? Anyone from you? Anyone can answer? In brief? Okay. अगर आपका आंसर यही है कि कैंसर इज uncontrolled growth of cancer tumor cells or cancerous cells, then it is a half answer. It is half true. It's not completely true. So let us see what is the correct. So जो भी हमें पता है अभी तक, that is the cancer is a disease of tumor and uncontrolled growth of cells. तो ये it is not a complete truth. अगर हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है तो बेसिकली आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली गलत उत्तर होगा. द रियल आंसर इज, जो हमें यहाँ पे दिखाई देगा, द रियल आंसर ऑफ व्हाट इज द कैंसर इज अ फेलियर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यून सिस्टम. ओके, तो वी विल जस्ट गो थ्रू दिस साइड, दिस पीपीटी. सो ब्रीफली हम देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली फेलियर मैकेनिज्म व्हिच कॉजेस कैंसर. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस व्हेन tumor is formed in body at any site,
let's say at lungs or stomach. तो NK cells and macrophages जो होते हैं, they detect tumor. Okay, how they detect tumor? They senses the stress-induced ligands and absence of MHC1 molecule on their surface. So this is how the tumor is detected by immune system. Okay, after that, the dendritic cells present these antigens to T cells. फिर T cells के बाद जाने के बाद जो CD8 या TH1 सेल्स होते हैं, हेल्पर T सेल्स, तो अपना एक इफेक्टर रिस्पॉन्स वहां पे इंड्यूस करते हैं, जो कि साइटोटॉक्सिक ट्यूमर सेल, साइटोटॉक्सिक T सेल्स जो होते हैं वो एपोप्टोसिस इंड्यूस करता है. एपोप्टोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ किलिंग एबनॉर्मल सेल्स या कैंसर सेल्स. तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज अ नेचुरल मैकेनिज्म. मतलब हमारे बॉडी में कैंसर जो है दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, एंड एपोप्टोसिस इज द ओनली प्रोसेस व्हिच इज किलिंग बिलियंस ऑफ द सेल्स डेली. तो विद दिस प्रोसेस the abnormal cells are being removed from our system. Okay, तो ये जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है, अगर वो हैम्पर हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से या फेल हो जाता है, if apoptosis is not able to clear the tumor load completely, then the cells जो होते हैं abnormal cells, they moves to further phase. तो यहाँ पे हमें दिखेंगे कि यहाँ पे टोटल 3 फेजेस है. तो फर्स्ट वन जो हमें दिख रहा है एलिमिनेशन फेज, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको. तो इसमें एक्टिव इम्यूनो सर्विलेंस रहता है, तो इसलिए ट्यूमर्स जो है डिटेक्ट होगा और एपोप्टोसिस प्रोसेस से वो एलिमिनेट भी हो जाएगा. बट इफ ट्यूमर इज नॉट एलिमिनेटेड कंप्लीटली, देन इट एंटर्स इनटू द सेकंड फेज व्हिच इज द इक्विलिब्रियम फेज. एंड इन इक्विलिब्रियम फेज देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कैंसर इम्यूनो एडिटिंग. इसमें क्या होता है, कैंसर इम्यूनो एडिटिंग में तो हाईली इम्यूनोजेनिक सेल जो होते हैं कैंसर के, दोज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग किल्ड. और जो लो इम्यूनोजेनिक सेल्स होते हैं जिसमें ज्यादा म्यूटेशंस नहीं हुए हैं, तो वो वहीं पे रहेंगे, बट उनका जो ओवरऑल ग्रोथ जो होगा वो डॉर्मेंट ही रहेगा. मतलब वो नीदर दे विल इंक्रीज इन द साइज नॉर दे विल डिक्रीज इन द साइज. तो दिस इज द फेज 2. फेज 3, इफ अगर यहाँ पे भी कंप्लीट ट्यूमर नहीं जो है कंट्रोल नहीं होता है, देन इट विल एंटर इन द फेज 3, जिसमें फर्स्ट एक्शन होगा रिड्यूस्ड इम्यूनोजेनेसिटी. तो इसमें क्या होता है कि डाउन MHC1 जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका डाउन रेगुलेशन हो जाता है, बिकॉज कैंसर सेल जो होते हैं उसको डाउन रेगुलेट कर देते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है. तो बिकॉज ऑफ द डाउन रेगुलेशन ऑफ MHC1 मॉलिक्यूल, तो those cancer cells become invisible, means our natural defense mechanism cannot detect them. and उसके बाद क्या होता है कि ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट जो है, which can be seen in the previous slide, तो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है. एंड व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन TME कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस causes shift from M1 to M2 phenotype. तो इसमें M1 which is a anti-cancer phenotype which converts into pro-tumor phenotype. तो इससे क्या होता है कि ट्यूमर का ग्रोथ जो है होने लगता है. Further what happens, checkpoint activation means cancer cells जो है PD-L1 जो कैरी करते हैं which binds with the PD-1 on the T cells, और ओवरऑल सिस्टम जो है वहां पे करप्ट हो जाता है एंड कैंसर सेल्स जो है अनकंट्रोल उसका ग्रोथ होने लगता है. तो इन शॉर्ट दिस इज द इम्यून रिस्पॉन्स इवेंट्स इन द ट्यूमर कंट्रोल. तो इन तीनों फेजेस में कोई भी ट्यूमर जो है वो एक नॉर्मल मतलब छोटे साइज के ट्यूमर से एक अनकंट्रोल ट्यूमर साइज ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है. तो दिस इज द प्रोसेस. तो जस्ट अ मिनट, स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इसमें यू कैन सी बेज कलर में या पिंकिश कलर में जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, दोज आर कैंसरस सेल्स एंड अदर सेल्स आर यू कैन कॉल इट एज NK सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स के जो डिफरेंट वेरिएशंस है वहां पे टी हेल्पर सेल, डेंड्राइटिक सेल्स वहां पे आपको दिखेंगे. तो नन ऑफ द ट्यूमर इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ द कैंसर सेल्स. इट इज मेड अप ऑफ द कैंसर सेल्स, okay, as well as the other cells which are either controlling the tumor growth or other factors which are increasing the
ट्यूमर ग्रोथ. ओके, यू कैन सी हियर द ब्लड वेसल जो वहां पे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है. तो इसी माइक्रो एनवायरनमेंट में, ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? सम ऑफ द सेल्स विल प्रेजेंट इन द फेज ऑफ हाइपरट्रोफी, सम ऑफ द सेल्स विल बी प्रेजेंट इन द फेज ऑफ हाइपरप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, एंड सम ऑफ द सेल्स विल बी प्रेजेंट इन द नियोप्लेशिया. तो जो भी हमें कैंसर रिलेटेड सेल्स जो बेज कलर में वहां पे दिख रही थी, दोज आर आल्सो नॉट होमोजीनियस. तो उसमें से भी हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया टाइप के जो सेल्स होते हैं, दैट कैन बी डेफिनेटली रिवर्स्ड. अगर वहां पे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, तो उसके बाद जो हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, डिस्प्लेसिया जो है वो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द नियोप्लास्टिक सेल्स, तो अगर हम इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे पेशेंट की, तो डेफिनेटली नियोप्लास्टिक सेल्स कैन आल्सो किल्ड विद द हेल्प ऑफ एपोप्टोसिस, जो हमने देखा है. सो इन शॉर्ट हमें यही कहना था इस तीन पिपड़ीज में कि cancer is not disease of tumor related disease, it is a failure of our immune system. Okay, now comes to our main topic. तो अगत तंत्र का रोल क्या हो सकता है कैंसर में? अगर हम उसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फैक्टर्स. नंबर 1 इज इटोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जिस रीजन की वजह से कैंसर हो रहा है, तो उसमें अगत तंत्र अपना क्या रोल प्ले कर सकता है. देन मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर, वहां पे अगत तंत्र का क्या रोल होगा. देन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, वी विल टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ द प्राइमरी कैंसर, मींस टोबैको च्यूइंग से ओरल कैंसर हो रहा है, तो दैट इज अ प्राइमरी कैंसर. रिकरेंस क्या है कि टोबैको खाने से अगर ओरल कैंसर हुआ है, तो आफ्टर सर्जरी या और कोई भी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स लेने के बाद अगर वो फिर से वही लोकली आ रहा है उसी रीजन पे, या इट इज रिकरिंग एट सम डिस्टल साइट्स लाइक इन लंग्स और लीवर, तो उसको हम कहेंगे रिकरेंस. तो अगत तंत्र का रोल हम उसमें भी देखेंगे. ठीक है, तो दैट विल कम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर. नाउ कमिंग टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, अभी इस यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, दिस इज द लिस्ट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंसेस व्हिच इज क्लासिफाइड एज अ ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस. ओके, and it was published by IARC, which is International Agency for Research on Cancer. ये WHO के अंडर काम करने वाली एक इंस्टीट्यूट है जो कि डिफरेंट कार्सिनोजेंस है. कार्सिनोजेंस मतलब क्या, कि ऐसे एजेंट्स जो कैंसर को क्रिएट करते हैं या कैंसर को बढ़ावा देते हैं. तो ग्रुप 1 में वही सब्सटेंसेस उन्होंने ऐड किए हैं जिसके बारे में हमें सफिशिएंट एविडेंसेस है, मींस दे आर नोन टू कॉज कैंसर. तो उसमें कौन कौन से है, तो हम पहला देखेंगे कि आर्सेनिक and inorganic arsenic compound which can cause skin, lung and bladder and liver cancer. Then next one is a cadmium compound which can cause lung and prostate cancer. Then chromium 6 compounds can cause lung and stomach cancer. Nickel compounds can cause nasal cavity, cancers of nasal cavity and lung cancer. Then beryllium compounds can cause lung cancer. Formaldehyde can cause nasopharyngeal cancers and leukemia. Then vinyl chloride can cause angiosarcoma of liver and hepatocellular carcinoma. ठीक है. Then polychlorinated biphenyls PCBs can cause melanoma and liver cancer. इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है which is a dioxins, जो कि प्रेजेंट होता है पेस्टिसाइड्स में, तो which is related with the all type of cancer, और इसका जो लिंकेज हो, स्ट्रॉन्गली लिंकेज जो है एस्टेब्लिश हो चुका है. तो एंड नेक्स्ट वन इज एफ्लाटॉक्सिन, जो कि हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा क्रिएट कर सकता है. तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो भी एजेंट्स कैंसर को क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर हम अगत तंत्र के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, एंड इफ एनीबडी इज वर्किंग विद द मींस इन ऑक्यूपेशन रिलेटेड विद दिस सब्सटेंसेस और एक्सपोजर टू दिस सब्सटेंसेस, वी कैन डेफिनेटली उसका मतलब टॉक्सिकल प्रोफाइलिंग जो है उसको करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस लेटर. देन नॉन कंसेप्ट ऑफ दुशिविश एंड गर्विश. तो मैं यहाँ पे दुशिविश और गर्विश दोनों को एकदम सेपरेटली नहीं लेने वाला हूं, बट ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे. तो दुशिविश विच इज अ लैटेंट एंड स्लो एक्टिंग क्यूमुलेटिव टॉक्सिन. ठीक है, तो अल्प गुण वाला है, ठीक है, स्लो एक्टिंग है, और बहुत देर तक रहने के बाद वो बॉडी में अपने इफेक्ट जो है क्रिएट करता है. तो we can definitely correlate this dushivish with the habitual cancers produced by
habits, which is a tobacco, means tobacco can cause oral cancer, then smoking can cause lung and bladder cancer. बहुत वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं हमारे बॉडी में, those can cause cancers, different type of cancers. Number 1 is a liver cancer. ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी अगर इन्फेक्शन है, प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी कैन डेफिनेटली कॉज लंग कैंसर आफ्टर लेट्स से 20 और 20 years, 20-25 years. देन बर्किट लिम्फोमा जो है, ठीक है, देन बर्किट लिम्फोमा जो है वो भी एक टाइप का कैंसर ही है, which is caused by viruses. Then cervical cancer, we all know कि HPV जो वायरस होता है that can cause cervical cancer. Then Kaposi sarcoma, तो ये भी this is a type of sarcoma which is caused by viruses. तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि वायरस जो है कि अगर हम जांगम विष को कंसिडर करते हैं तो जांगम विष भी बाद में कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है. देन प्रोसेस फूड which is very common. आज के दिनों में सब लोग जो है प्रोसेस फूड खा रहे हैं, which is strongly linked with colorectal cancer. Then chronic chemical exposure, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत सारे अगर रेगुलेशंस को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया गया है तो those products can cause skin cancer. ठीक है, because of the chemical exposure. Then industries related with dyes, rubber and chemical industries can cause bladder cancer. ठीक है, दिस इज रिलेटेड विद द दूषित विष. अगर गर्विश के बारे में हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल मैनमेड जितने भी केमिकल एक्सपोजर्स अभी हो रहे हैं दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इन द गर्विश. आमज व्याधि को भी हम इसमें ले सकते हैं. एंड लॉन्ग टर्म पॉलीफार्मेसी. लॉन्ग टर्म पॉलीफार्मेसी क्या है कि अगर कोई भी पर्सन एक बीमारी के लिए आयुर्वेदिक भी मेडिसिन ले रहा है, एलोपैथी भी ले रहा है, होम्योपैथी भी ले रहा है और पता नहीं खुद से ही अपने आप से ही कोई रेमेडीज जो है ट्राई कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म पॉलीफार्मेसी जो है इसका कोई भी रिकॉर्ड ना होने की वजह से दैट कैन कॉज डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग कैंसर. कैंसर होगा ही ऐसे नहीं है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी लिंक्ड. नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपिक एजेंट्स. तो अभी जब हम कैंसर किस किस रीजन की वजह से होता है तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो हम कैंसर ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो कैंसर ट्रीटमेंट्स लेने की वजह से भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हमारे बॉडी में हो सकते हैं. तो अगर हमें कैंसर मैनेज करना है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम वी विल ट्रीट ट्यूमर ओनली. हमें ट्यूमर रिलेटेड या जो भी ट्रीटमेंट्स मॉडर्न इसमें चल रहा है तो उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो है उसको भी ट्रीट करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट. तो इसमें हम देखेंगे कि विष योनि जो है या विष अधिष्ठान जो है उसके हिसाब से मैंने इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की है. तो वी कैन सी chemotherapeutic agents from the plant origin are vinca alkaloids, taxanes, okay, then podophytotoxins derivatives. ठीक है, then microbial जो है streptomyces species जो है that can be used as a chemotherapeutic agent. Then metal origin, so it is platinum based chemotherapeutic agents are very commonly used, and arsenic trioxide is also used in the treatment of ल्यूकेमिया. देन एनिमल ओरिजिन के भी कुछ हमें कीमोथेरेपिक एजेंट्स यहाँ पे मिलते हैं. देन सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक. तो अगर इसको हमें कोरिलेट करना है तो उसको हम डेफिनेटली गर्विश के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें है अल्कलीटिंग एजेंट्स लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड एंटी मेटाबोलाइट्स लाइक मिथोट्रिक्सेट एंड 5-FU एंड साइटाराबाइन. सिंथेटिक एजेंट्स में रहेगा इमेटिनिब एंड एर्लोटिनिब. थोड़ा सा हम डिटेल जाएंगे प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी के बारे में बिकॉज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ धातु विष. तो उसको डेफिनेटली हम कोरिलेट कर सकते हैं अगर तंत्र के लोग जो है. तो प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी एजेंट्स, देयर आर मेनली 3 एजेंट्स, सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन एंड ऑक्सालिप्लैटिन. सिस्प्लैटिन कैन कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी. कार्बोप्लैटिन कैन कॉज माइलोसप्रेशन. Oxaliplatin can cause neurotoxicity and respiratory issues or respiratory distress. तो ये जो platinum based agent जो है those are mostly used in the cancer of head and neck, treatment of the cancers of head and neck, lung, breast, colorectal cancer, bladder cancer, ovarian cancer, testicular and cervical cancer. इसमें ज्यादातर यूज होते हैं. मतलब साइड इफेक्ट जो हमने उसके देखे, अगर इसी एजेंट्स का कंजम्पशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स कैन अराइज इन द फॉर्म ऑफ नर्व डैमेज एंड इवन सेकंड कैंसर.
मतलब कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से, ट्रीटमेंट के लिए जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से भी सेकंड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पांडु, अग्निमांद्य, ज्वर, ग्रहणी, धातुक्षय, ये जो लक्षण है या सिम्टम्स है ये हमें नॉट ओनली सीन इन द प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी एजेंट बट अदर एजेंट जो है तो मोस्टली मिलने वाले वही सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम फिर से कोरिलेट कर सकते हैं गर्विश या दुष्विश के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इसके बारे में थोड़ा सा डीप जाएंगे। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है? इट इज अ सडन रिलीज ऑफ पोटेशियम, फॉस्फेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जब भी कोई भी हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी होती है, लाइक एक्यूट ल्यूकेमियाज है या हाइग्रोड लिम्फोमाज है, जिसमें ट्यूमर साइज काफी बड़ी होती है, 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तक के बड़े बड़े ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम कीमोथेरेपी देते हैं या कोई भी एंटीटॉक्सिक टॉक्सिक एजेंट देते हैं तो उससे क्या होता है कि कैंसर जो सेल्स जो होते हैं वो रैपिडली उनका डिटोरेशन होने लगता है, रैपिडली किलिंग कैन हैपन इन दिस सिनेरियो। तो रैपिड डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है कि डीएनए ब्रेकडाउन होने की वजह से हाइपर यूरेमिया हो सकता है, विच कैन लीड टू acute renal failure. Then because of the cell membrane lysis, hyperkalemia होता है, which can cause arrhythmias and death. And hyperphosphatemia होने की वजह से renal injury हो सकती है, और hypocalcemia होने की वजह से सीजर्स जो है वहां पे आ सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी एक्यूट कंडीशंस, और इसमें सडन डेथ भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर ओवरऑल इंसिडेंस देखा जाए तो इट इज 30 to 40% विदाउट प्रोफिलैक्सिस। इसलिए अगर कोई भी पेशेंट हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज लाइक ल्यूकेमिया का है या लिम्फोमास का है, हाई ग्रेड लिम्फोमास का, तो उसमें हम डेफिनेटली प्रोफाइलेक्टिकली कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसी को टॉक्सिसिटी कंसिडर करते हुए अगर तंत्र के जो भी प्रिंसिपल्स है उसको इस्तेमाल करके हम मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कैंसर मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द ट्यूमर रिडक्शन, तो इसकी साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी जो है उसको भी हमें मैनेज करना पड़ता है। तो उसमें मेनली है रिड्यूसेस द कीमो एंड रेडियोथेरेपी साइड इफेक्ट्स, जो कि सभी को पता है कीमो और रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है। बोन मैरो सप्रेशन इज अ वेरी वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड सिम्टम। तो इसमें क्या होता है कि बोन मैरो में जहां पे हेल्दी बोन मैरो विच इज प्रोड्यूसिंग हेल्दी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, तो कीमोथेरेपी एजेंट की वजह से बोन मैरो सप्रेशन होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हेल्दी या मैच्योर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जो है वो प्रोड्यूस ना होने की वजह से इधर पेशेंट कैन डेवलप एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या डब्ल्यूबीसी काउंट जो है पेशेंट का वो एकदम सडनली ड्रॉप हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी काउंट एकदम सडनली कम होने की वजह से पेशेंट इज प्रोन फॉर द सेकेंडरी इन्फेक्शंस, फिर उसमें फिर फीवर आ सकता है या और भी कोई सेप्सिस हो, अदर कंडीशंस जो है उसमें डेफिनेटली पेशेंट कैन लैंड। अदर कॉमनली ऑब्जर्व सिम्टम्स आर फटीग, नोशिया, न्यूरोपैथी, म्यूकोसाइटिस, ठीक है। तो दीज आर द कॉमनली ऑब्जर्व टॉक्सिसिटीज। तो उसका भी हमें ट्रीटमेंट जो है करना चाहिए, या अगर तंत्र के जो भी प्रैक्टिशनर्स है तो वी कैन थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अभी कॉज ऑफ डेथ क्या होता है कैंसर में, ये मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कैंसर होने के बाद या ट्यूमर डेवलप होने के बाद डेथ एक्चुअली किस रीजन की वजह से, इज इट बिकॉज ऑफ द कैंसर इटसेल्फ, मींस ट्यूमर इटसेल्फ, देन द आंसर इज नो। तो उसमें कॉज ऑफ डेथ जो मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं, नंबर 1 इज ऑर्गन फेलियर, ठीक है। तो ऑर्गन फेलियर मतलब जितने सारे वाइटल ऑर्गन्स है, तो या कोई भी सिंगल ऑर्गन, जैसे मान लो सिर्फ लंग्स में हुआ है, तो लंग्स कंप्लीटली कोलैप्स होने की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा, उसकी वजह से डेथ हो सकता है। सेप्सिस विद द मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, अगर सेप्सिस बहुत ज्यादा हो गया है किसी पेशेंट में, बिकॉज जैसे अभी पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है, या बिकॉज ऑफ ट्यूमर इटसेल्फ, अगर वहां पे ट्यूमर में ही इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, सो आफ्टर दैट इट कैन लीड टू मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन और फेलियर। देन रेस्पिरेटरी फेलियर, हेपेटिक फेलियर, ठीक है। तो हेपेटिक फेलियर कैन कॉज बिकॉज ऑफ द ट्यूमर प्रेजेंट इन द लिवर ऑल्सो, या इफेक्ट ऑफ द ट्यूमर प्रेजेंट डिस्टली एंड इफेक्ट ऑफ दैट ट्यूमर ऑन लिवर। देन रीनल फेलियर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है तो उसमें रीनल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर लार्ज ट्यूमर साइज में अगर एक्यूट कंडीशन हो सकती है
तो क्रॉनिक कंडीशन हो या स्लोली अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी ट्यूमर का, तो उसमें भी रीनल फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और रीनल फेलियर जो है दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स आल्सो। देन कार्डियक इवेंट्स, अरिथमियाज जो है उसकी वजह से भी डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देन सीवियर माल न्यूट्रिशन, बिकॉज एपेटाइट एकदम से कम हो गई पेशेंट की, अग्निमांद्य है, दैट कैन लीड टू सीवियर माल न्यूट्रिशन which can cause death in the cancer patient, and last one is the bone marrow suppression। तो अगर हम इसको कैटेगरी मतलब इसको हम एनलिस्ट करते हैं इन सभी कॉजेस को, तो इसमें हमें कॉमन चीज देखने को मिलती है ऑर्गन फेलियर या वाइटल ऑर्गन फेलियर। तो अगर कॉज ऑफ कैंसर वाइटल ऑर्गन फेलियर है या मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन है, तो उस केस में भी हमें डेफिनेटली उस चीज को देखना चाहिए। अगर हम किसी भी कैंसर पेशेंट में पहले से ही प्रोफाइलेक्टिकली ये मेडिसिन देते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन डिले द डेथ, और इवन वी कैन डिले द कॉम्प्लिकेशंस, या कॉम्प्लिकेशंस की सिविरिटी जो है उसको हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो व्हाट इज अ साइटोटॉक्सिक वर्सेस एंटीटॉक्सिक अप्रोच, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, तो विच इज एंटीटॉक्सिक अप्रोच। तो व्हाट इज द डिफरेंस, तो इसको हम एस्पेक्ट में देखेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट इज द प्राइमरी टारगेट। तो साइटोटॉक्सिक अप्रोच में क्या होता है कि ट्यूमर सेल्स को टारगेट किया जाता है, तो उन्हीं को पहले किल किया जाता है। वेयर एज इन द एंटीटॉक्सिक अप्रोच पेशेंट या होस्ट सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। किसी भी पेशेंट को अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के बाद या उसकी इम्यूनिटी बढ़ने के बाद अपोप्टोसिस के थ्रू पेशेंट जो है कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर। तो उसमें ट्यूमर रिडक्शन भी हमें देखने को मिलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पेशेंट की एनहांस होती है, और सर्वाइवल के जो टाइम होता है सर्वाइवल का, वो भी हमें इंप्रूव वहां पे देखने को मिलता है। मेन गोल इन साइटोटॉक्सिक अप्रोच इज किलिंग रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स। कीमोथेरेपी या रेडिएशन जो भी हम देते हैं, तो दोज किल्स ऑल रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स, और इसीलिए जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स होते हैं वो ट्यूमर में रहते हैं। उसके अलावा फिजियोलॉजिकली हमारे बॉडी में नेचुरली रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं बोन मैरो में होते हैं, हेयर फॉलिकल में होते हैं और जीआई ट्रैक्ट में होते हैं। इसीलिए कोई भी पेशेंट्स जब कीमोथेरेपी लेता है, तो उसको ट्यूमर रिस्पांस के साथ साथ ये साइड इफेक्ट्स भी होता है, जिसमें जीआई ट्रैक्ट अपसेट होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन या नोशिया वोमिटिंग हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, बोन मैरो सप्रेशन होने की वजह से एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटेमिया, डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो सकता है, और हेयर जो है हेयर लॉस हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। Whereas in the antitoxic approach we restore body's balance and control cancer। तो इसमें हमें मेन डिफरेंस वही है कि हम बॉडी को, ओवरऑल बॉडी का बैलेंस जो है उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मोड ऑफ एक्शन इन साइटोटॉक्सिक अप्रोच इज डायरेक्ट सेल डिस्ट्रक्शन, whereas in antitoxic approach it is immune regulation and environmental correction। ठीक है। इफेक्ट ऑफ इम्यूनिटी, साइटोटॉक्सिक ट्रीटमेंट्स लेने की वजह से इम्यूनिटी जो है पेशेंट की वो सप्रेस हो सकती है। वेराज एंटीटॉक्सिक ट्रीटमेंट जब हम अप्रोच अप्लाई करते हैं, तो उससे इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, तो ओवरऑल इम्यूनिटी जो है पेशेंट की बढ़ती है, एंड वही हमारा मेन काम ही रहता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना। देन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इज अ रूट कॉज। जब हमने पहले देखा कि हाइपरप्लेशिया है, डिस्प्लेशिया है, तो इन सभी में इन्फ्लेमेशन जो है कॉमन होता है। तो साइटोटॉक्सिक अप्रोच से क्या होगा कि ये इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ेगा और उससे उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ेगा। वेयर एज एंटीटॉक्सिक अप्रोच से हम उसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसीलिए किसी भी पेशेंट में जब हमें जैसे कोई भी, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि लीवर कैंसर कैन कॉज बिकॉज ऑफ द हेपेटाइटिस बी एंड सी, तो ऐसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में अगर हम इम्यूनो मॉड्यूलेटरी मेडिसिन दे रहे हैं या लीवर को थोड़ा सा स्ट्रेन देने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, तो दैट कैन डेफिनेटली डिले द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, और अगर हो भी जाता है तो उसमें सिविरिटी जो है उसकी कम हो सकती है। देन इम्पैक्ट ऑन नॉर्मल सेल्स, बिकॉज ऑफ साइटोटॉक्सिक अप्रोच नॉर्मल सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं, एंड एंटीटॉक्सिक अप्रोच में हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड इवन टिश्यूज, नॉट ओनली सेल्स बट हम टिश्यूज को भी वहां पे प्रोटेक्ट करते हैं। टॉक्सिसिटी प्रोफाइल जो है साइटोटॉक्सिक अप्रोच में काफी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ नोशिया, फटीग, माइलोसप्रेशन एंड इवन सेकंड कैंसर, whereas in antitoxic approach it is low or rather protective। ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट जो हमने पहले साइड में देखा है कि जहां पे कोई भी ट्यूमर में वहां पे हेटेरोजेनस एक स्ट्रक्चर रहता है, इसमें कैंसर सेल्स भी है,
और जो फाइटिंग सेल जो है हमारे इम्यून सिस्टम रिलेटेड, जो भी एनके सेल्स हो या माइक्रोफेजेस हो, डेंड्राइटिक सेल्स हो, तो वहां पे प्रेजेंट है। तो उस पे साइटोटॉक्सिक अप्रोच का क्या इफेक्ट होता है? इट इज ऑफन इग्नोर्ड, मतलब वहां पे माइक्रो एनवायरमेंट का इतना वहां पे विचार नहीं किया जाता है। वेयरएज एंटीटॉक्सिक अप्रोच में हम उसी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी हेटेरोजेनस कंडीशंस में इन्फ्लेमेशन भी है, डिस्प्लास्टिक चेंजेस भी है, नियोप्लास्टिक चेंजेस भी है, तो उसी को हमें करेक्ट करना पड़ता है, जो हमने पहले 2-3 स्लाइड्स में देखा। देन रोल इन द एपोप्टोसिस में रोल क्या होता है साइटोटॉक्सिक अप्रोच में? इट फोर्सेस सेल डेथ बाय डैमेज, उस सेल को मारना ही उनका काम होता है। और वेयर एज इन एंटीटॉक्सिक अप्रोच वी रिस्टोर नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस कह रहे हैं। तो एपोप्टोसिस को हमें रिस्टोर करना हमारा एंटीटॉक्सिक अप्रोच का मेन काम होता है। लॉन्ग टर्म कंट्रोल में क्या होगा, अगर हम साइटोटॉक्सिक अप्रोच अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्यूमर श्रिंकेज मिलेगा, बट वही शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में तो ट्यूमर कम हुआ है, साइज 10 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर हो गई या 10 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो गई है, बट इन लॉन्ग टर्म उसमें रिकरेंस दिखेगा या उसी ट्यूमर का प्रोग्रेशन या साइज ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, रिकरेंस देखने को मिलेगा या डिस्टल रिकरेंस भी देखने को मिल सकता है। वेयरएज इन एंटी टॉक्सिक अप्रोच हमें लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल मिलता है, मतलब ऐसे पॉसिबल भी नहीं हुआ कि हमने कंप्लीटली ट्यूमर को कंट्रोल कर लिया है, बट डेफिनेटली उस ट्यूमर को हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि वो डॉर्मेंट फेज में रहे, ना उसकी साइज बढ़े ना कम हो, या हो तो कम ही हो, या बढ़े भी तो भी इट शुड नॉट कॉज मोर ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। देन प्रिवेंशन, रिकरेंस प्रिवेंशन में साइटोटॉक्सिक अप्रोच में रिकरेंस प्रिवेंशन लिमिटेड होता है, एंटीटॉक्सिक अप्रोच में वो बेटर प्रिवेंशन वाया इम्यून बैलेंस। उसका एग्जांपल क्या है साइटोटॉक्सिक में? कीमोथेरेपी, रेडिएशन नॉन, एंड एंटीटॉक्सिक अप्रोच में हम इम्यूनोमॉड्यूलेशन कर सकते हैं, रसायन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, विच इज अ गुड पार्ट ऑफ अगत तंत्र, एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इन चीजों को हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग अबाउट एंटीटॉक्सिक अप्रोच। तो what are the key components of anti-toxic tumor control? Number 1 is immune system reactivation. तो उसमें क्या होता है कि CD8 T cells जो होते हैं, NK cells एक्टिविटी, वो एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन, इनकी ग्रोथ होती है या इनको प्रोमोट किया जाता है। एट द सेम टाइम इट डिक्रीजेस द टी रेगुलेटरी सेल्स जो होते हैं उनको डिक्रीज कर देता है, एंड MDSC जो माइलॉइड डिराइव्ड सप्रेसर सेल्स है उसको डिक्रीज करता है, विच रिजल्ट्स इन द एक्चुअली क्या रिजल्ट करता है कि बॉडी रिकॉग्नाइजेस एंड कंट्रोल ट्यूमर सेल्स। जो हमने पहले सेकंड स्लाइड में देखा था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही प्रेजेंटेशन जो है ट्यूमर सेल्स का, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, और उसी की वजह से our immunity can recognize those cancer cells and can destroy them naturally and effectively with the help of apoptosis. Then second one is a reducing chronic inflammation. तो कैंसर जो है that grows in toxic and inflamed microenvironment. अगर किसी भी जगह पे या टिश्यू लेवल पे या ऑर्गन में या साइट पे अगर हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, टॉक्सिसिटी है या टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो उस एनवायरमेंट में जो है कैंसर डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो उसी एनवायरमेंट को हम कह सकते हैं, अगर कोई काय चिकित्सा का प्रैक्टिशनर है तो ही मे कॉल इट एज आमा या सामता उसको कह सकता है, या दूसरे पैथी के लोग उसी को कह सकते हैं, अगत तंत्र के लोग उसको कह सकते हैं कि दिस इज रिलेटेड विद द दूषी विष और इम्पैक्ट ऑफ द दूषी विष और गर विष, उसको हम कह सकते हैं। अगर कोई सिर्फ रसायन चिकित्सा कर रहा है तो उसको हम अभाव कह सकते हैं कि उसमें रसायन चिकित्सा का अभाव होने की वजह से ये जो कंडीशन वहां पे क्रिएट हुई है। तो इसमें क्या होगा कि सेल्यूलर रिपेयर, अगर हम इस चीज को प्रमोट करते हैं तो सेल्यूलर रिपेयर जो है होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और डीएनए स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो डीएनए जो म्यूटेशंस वहां पे होते हैं यूजुअली इन द ट्यूमर, कैंसर ट्यूमर्स, तो डीएनए स्टेबिलिटी होने की वजह से और सेल्यूलर रिपेयर होने की वजह से वो जो है ट्यूमर जो है उसका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। डिक्रीज क्या होता है? इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, COX-2, इनकी जो ग्रोथ होती है और स्प्रेड होता है उसको कम किया जाता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन ट्यूमर लूजेस इट्स फर्टाइल सॉइल। मतलब जो उसे जगह मिल रही है ग्रोथ होने के लिए, तो वहां पे फर्टाइल सॉइल ना होने की वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। देन रिस्टोरिंग एपोप्टोसिस एंड सेल साइकिल कंट्रोल। तो एक बढ़ेगा, क्या क्या होगा? ग्रोथ अरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है
उन सेल्स को कैप्चर कर पा रही है, क्योंकि उसके MHC1 का लेवल अभी उस पर लग चुका है। जिन सेल्स के ऊपर MHC1 का लेवल लग चुका होता है, आवर इम्यूनिटी कैन आइडेंटिफाई दोज सेल्स इफेक्टिवली। देन डिफरेंशिएशन और प्रोग्राम डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को इसका इंक्रीज होता है। और उसके साथ साथ P53 सिग्नलिंग जो है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो है, और ऑटोफैगी बैलेंस जो है, इनको प्रमोट किया जाता है एंटीटॉक्सिक अप्रोच में, और एंड व्हिच कैन रिजल्ट इन द कैंसर सेल्स स्टॉप मल्टीप्लाइंग एग्रेसिवली। इसीलिए ट्यूमर कंट्रोल जो है इफेक्टिवली वहां पे आ जाता है। अगर कैंसर सेल का प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन, या जो जिस एग्रेशन के साथ वो बढ़ रहे हैं, अगर हमें उसमें कंट्रोल मिल जाए तो डेफिनेटली हम कैंसर सेल्स, ट्यूमर को ग्रोथ जो है उसको हम कम कर सकते हैं। देन डिटॉक्सिफाइंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, इसमें मेनली होता है लीवर गट इम्यून एक्सिस करेक्शन, ठीक है। तो यूजुअली देखा जाता है कि जब हम डिटॉक्स कहते हैं तो डिटॉक्स इज मेनली रिलेटेड विद द बस्ती, विरेचन, वमन, ज्यादा नस्य और रक्त मोक्षण, ठीक है। बट इससे क्या होता है, जब हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तब लीवर गट इम्यून एक्सिस करेक्शन होता है। व्हाट इज द लीवर गट इम्यून एक्सिस करेक्शन? तो इसमें लीवर और गट, इन दोनों में एक बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। जब गट में अगर कोई भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं विच इज कनेक्टेड विद टू द लीवर विद पोर्टल सिस्टम, तो लीवर जो है ऐसे बैक्टीरियाज को किल करता है, और बायोडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होने की वजह से जब वो बाइल सिक्रेट करता है तो उसी का यूज फिर गट बैक्टीरिया जो है वो करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे कंडीशंस में या दूसरे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इसीलिए अगर लीकी गट है तो लीकी गट कैन वर्स द कंडीशन। तो जब हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो इसी चीज को पहले मतलब करेक्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ अभी एक पहला एक्सिस हो गया लीवर गट इम्यून एक्सिस, सेकेंड आता है ब्रेन गट एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम कोलोन में वहां का जो हेल्दी बैक्टीरियाज या हेल्दी फ्लोरा जो है उसको अगर हम उसकी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन एंडोटॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट और ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी को हम कम कर सकते हैं इन सभी चीजों की वजह से, which ultimately results in the management of जो भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है एट ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, तो अल्टीमेटली ये इसको रिस्पॉन्स कर सकता है। तो इसलिए सिर्फ बस्ती देने से कैंसर कैसे कम होगा या विरेचन देने से कैंसर कैसे कम होगा, अगर हमारा एक सवाल है तो वी कैन डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन इन दिस वे, और which will definitely result in the less permissive nature for cancer survival, ठीक है। देन ओवरऑल इम्यूनिटी जो है पेशेंट की, ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है, टिश्यू हेल्थ जो है बढ़ती है, और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो है पेशेंट की वो कम होने लगती है। और इसी की वजह से क्या होगा, ट्यूमर कंट्रोल, बेटर टॉलरेंस और प्रिवेंशन, प्रोग्रेशन एंड लॉन्गर सर्वाइवल, ये सभी चीजें वी कैन डेफिनेटली अचीव विद द हेल्प ऑफ एंटीटॉक्सिक ट्यूमर कंट्रोल। थोड़ा सा हमें मतलब सुपरफिशियल भी जाना था, लेकिन कुछ चीजों को हमें थोड़ा सा देखना भी, क्योंकि हमें एंटीटॉक्सिक चीजों के बारे में ही यहाँ पे स्टडी करना है। तो अगर हम देखें इन सभी चीजों को और उसको फिर कोरिलेट करें व्हाट अगर तंत्रा कैन डू इन कैंसर मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली जो भी मोस्ट कॉमनली सीन सिम्टम्स है लाइक पांडु, अग्निमांद्य, ज्वर, ग्रहणी, धातुक्षय एक्सेट्रा, इन सभी सिम्टम्स का ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। प्राइमरी प्रिवेंशन, जितने सारे अभी हमने देखे कि टॉक्सिन्स या सब्सटेंसेस से 2000 नोन टू कॉज कैंसर, तो उनका हम प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हमें इंडिविजुअलाइज टॉक्सिसिटी प्रोफाइल करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी पर्सन किसी ऑक्यूपेशनल हजार्ड में एंगेज्ड है और जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है, तो अगर तंत्र के लोग जो है उनका टॉक्सिसिटी प्रोफाइल कर सकते हैं, वेयर वी कैन कैटेगराइज द टॉक्सिसिटी रिस्क बाय माइल्ड, मॉडरेट, हाई रिस्क, उस कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और उसी की वजह से अप्रोप्रिएट एक्शंस भी हम ले सकते हैं सो दैट कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड और डिलेड, ठीक है। देन डिले ऑफ रिकरेंस, कैंसर होने के बाद सब प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन कंप्लीट हो चुका है एंड द पेशेंट इज इन फेज ऑफ रेमिशन, तो अगर हम ये सब हम प्रॉपरली केयर रखते हैं, टॉक्सिसिटी जो है बॉडी में एट जीआई लेवल एंड सेलुलर लेवल दोनों को अगर कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन डिले रिकरेंस। यहाँ पे मैं जानबूझ के डिले वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि हमें प्रिवेंशन जो है हर जगह पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिले इज अ वेरी साइंटिफिक वर्ड, क्योंकि अगर बॉडी में कैंसर है तो देर आर चांसेस कि 1 साल बाद
या ज्यादा से ज्यादा 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर हमने बहुत अच्छी केयर भी ले ली है, फिर भी 5 साल बाद, 10 साल बाद वो रिकरेंस हो सकता है। बट डेफिनेटली जितना रिकरेंस का पीरियड जो है वो डिले होते जाएगा, उतने रिकरेंस के चांसेस जो है वो कम कम होने लगते हैं, बट इट नेवर कम्स टू 0। देन प्रिवेंशन ऑफ सेकंड कैंसर। तो सेकंड कैंसर का मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इटसेल्फ या कैंसर इटसेल्फ सेकंड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो उसको भी अगर हम टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल को कंसिडर करके अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया तो वी कैन डेफिनेटली प्रिवेंट सेकंड कैंसर। देन प्रिवेंशन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो दोज आर द एरियाज वेयर Agat Tantra person can they give their expertise to control or manage these conditions. इसमें और एक है कि we have to understand the principles, जो भी हम principles, जिस principles से हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस principles को पहले हम समझो, और then if you know कि exactly क्या करना है, then you have multiple weapons कि फिर उसको आप काय चिकित्सा के थ्रू मैनेज करो, या रस औषधि के साथ मैनेज करो, या अगत तंत्र में जितने सारे ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स कहे गए उससे हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ता है, अगर किसी भी कैंसर पेशेंट की हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती, तो सबसे पहले हमें उसकी अग्नि जो है उसको हमें स्टेबल रखना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ को हमें उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स के बेस पे ही हमारा धातु बल डिपेंड रहता है, और जितना पेशेंट का धातु बल अच्छा रहेगा, उतना उसका रेजिलिएंट नेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, उतना वो कैंसर के खिलाफ अच्छी तरह से फाइट कर सकता है, रिकरेंस को प्रिवेंट या डिले करवा सकता है, या सेकंड कैंसर की डेवलपमेंट जो है उसको भी रोक सकता है। देन रक्त धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रक्त ही हमारे बॉडी में सब न्यूट्रिएंट्स, सभी चीजों को प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हमें रक्त धातु की भी वहां पे ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। उसके साथ साथ हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें पंचकर्म करना चाहिए क्या, तो इसका आंसर डेफिनेटली नो है। पंचकर्म हम डेफिनेटली कर सकते हैं जिस पेशेंट में अगर रुग्ण बल अच्छा है, या इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेशेंट आपके पास आया है, तो उसमें डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ पंचकर्म हम डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल विद सम रस औषधि, ताम्र भस्म जो है वो डिटॉक्स करने के लिए बहुत नोन है। देन हीरक भस्म है, तो हीरक भस्म जब, क्योंकि इनकी ड्यूअल नेचर होती है कि वो मेडिसिन एज ए मेडिसिन भी काम करते हैं और वो डिटॉक्स भी करते हैं ओवरऑल ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट को। तो डिटॉक्स कैन हैपन विद पंचकर्म इवन विद द हेल्प ऑफ रस औषधि। शोथ जो है, शोथ एंड ज्वर, जो कि परसिस्टेंट कंडीशन रहती है किसी भी कैंसर में, तो उसको हमें मैनेज करना पड़ता है, उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। देन रसायन चिकित्सा, वात पित्त मैनेजमेंट, इन चीजों का हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो दीज आर द ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स इन एंटी टॉक्सिक कैंसर मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी आपको वेज पता है, तो अभी आपको सिर्फ वेपन्स चूज करने हैं फ्रॉम अगत तंत्र, बिकॉज यू पीपल नो मोर अगत तंत्र वेरी वेल, so you can definitely decide with which treatment you can means which treatment can be selected or which way can be selected to treat cancer. ठीक है, एंड एट द एंड हमें कभी भी इंटीग्रेटिव ब्रिज जो है वो बनाना पड़ता है, बिकॉज नन ऑफ द पैथीज कैन ब्लेम दैट इट कैन सोली ट्रीट द कैंसर। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल पैथीज के लोग अलग अलग जो है एक साथ आने चाहिए, सो दैट पेशेंट विल बी बेनिफिटेड। अगर किसी पेशेंट को इमीडिएटली कीमो देने ही, मतलब डिस्पाइट ऑफ हैविंग इट साइड इफेक्ट्स, अगर कीमो देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर उसी के साथ साथ हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी देते हैं और उसके मतलब साइड इफेक्ट्स को मैनेज करते हैं, तो इससे क्या होगा कि उसका ट्यूमर कंट्रोल भी हो जाएगा और टॉक्सिसिटी भी हमें वहां पे कम देखने को मिलेगी। लेटर ऑन पेशेंट कैन टेक मेडिसिन फॉर इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको बढ़ाने के लिए हम मेडिसिन ले सकते हैं। तो व्हाट मेन पॉइंट इज कि हमें इंटीग्रेटिव अप्रोच जो है वहां पे रखना है। तो इसीलिए इवन मतलब डिफरेंट पैथीज और इवन आयुर्वेदिक की डिफरेंट जो भी ब्रांचेस है वो सब एक साथ आके हम एक इंटीग्रेटिव पार्ट जो है वो बना के वी कैन पुट इट फॉरवर्ड एट साइंटिफिक लेवल, और अगर उसमें डेफिनेटली स्ट्रेंथ है तो इट विल बी डेफिनेटली एक्सेप्टेड। तो अल्टीमेटली क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन एंड साइटोप्रोटेक्शन, ये दोनों ही मेन चीजें हैं दैट कैन बी डेफिनेटली catered with the help of अगत तंत्र।
तो हम क्विकली वी विल गो विद द केसेस। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का एक्सप्लेन किया था, उसी से रिलेटेड एक मैं केस यहाँ पे ले रहा हूँ। दिस इज द केस ऑफ 49-year-old female. She was diagnosed with the T-cell acute lymphoid leukemia and she was on chemotherapy. After that, she developed septicemia and with septic shock. मतलब chemotherapy, first chemotherapy होने के बाद जब destruction होता है rapid, तो immediately after that she developed septicemia with septic shock. Chemotherapy was stopped because of the anterior wall MI. देखो मैंने वहां पे बताया था कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में कार्डियक इश्यूज भी होते हैं। तो कार्डियक इश्यूज नाउ हियर इन द फॉर्म ऑफ एंटीरियर वॉल एमआई, ठीक है, एंड सीवियर डीमाइलिनेटिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी जो भी हमें देखने को मिलती है। तो आफ्टर दैट the patient was required frequent blood transfusion due to pancytopenia because blood cancer hai, there are no healthy blood cells in the peripheral circulation. So because of that, central circulation, and because of that patient was on requirement of the blood transfusion. Then she was asked to take her home because condition was very critical, and she was asked to take her home because there was no promising treatment available for her. After that, relatives brought her to my OPD, and at that time she was unable to stand without support even for weight measurement. इतना उसका condition critical था कि patient was not able to stand. Overall condition देखने के बाद, नाड़ी परीक्षण करने के बाद, patient का overall condition का analysis करने के बाद, I started medicines. जब पेशेंट यहाँ पे आई थी तो पेशेंट का फटीग लेवल बहुत ज्यादा था। ECOG was 4. ECOG is a measurement of activities कि पेशेंट कितना एक्टिव है। 4 means patient is almost means bedridden. Okay. Anemia, HB उसका 3.6 था at the time of first visit. Cachexia, she had lost 10 kg weight in just 15 days. Severe bilateral pedal edema because of huge protein loss, albumin नहीं था, तो because of that there was a bilateral pedal edema. Dyspnea, patient breathless थी। Burning micturition, increased serum creatinine 1.6 उसका creatinine गया था, and pancytopenia. So those are the symptoms at baseline. Medicines patient को जब दिए गए तो these are the name of medicines जिसमें रक्तबीज है, रुद्यसोम है। Again these are the not classical medicines, एक combination है which is made up of classical medicines. रक्तबीज में लोह भस्म है, मंडूर भस्म है, कासिस भस्म, नवायस लोह, त्रिफला चूर्ण। हृदयसोम, अभी नाम से हमें पता चल जाएगा कि हमें हृदय, तो हृदय में आयुर्वेदा में डेफिनेटली हम हृदय, ठीक है, और बस्ती को भी इंक्लूड करते हैं। तो जब हम बस्ती को इंक्लूड करते हैं तो हम डेफिनेटली उसमें किडनीज भी है, वो आ ही जाती है। तो हृदयसोम में सुवर्ण भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म, त्रैलोक्य चिंतामणि। त्रैलोक्य चिंतामणि जो है ज्वर का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, वो उसको दिया गया। रौप्य भस्म, मकर ध्वज, अभ्रक भस्म एंड यशद भस्म। कौंतसुत सोम में सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, मुक्तापिष्टि, गोदंती, लघुसुत शेखर, ठीक है। अविक सोम में हीरक भस्म दिया था पेशेंट को, वैक्रांत भस्म और गुड़िच चूर्ण दिया गया था। शुचि सोम में सोमनाथी ताम्र भस्म 15 मिलीग्राम और विडंग चूर्ण 250 मिलीग्राम, ठीक है। तो इनिशियली रक्तबीज का डोज ज्यादा रखा था क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट पैनसाइटोपेनिया में थी, और पेशेंट को मेडिसिन दिए। मेडिसिन देने के बाद जब पेशेंट 1 महीने के बाद मेरे क्लिनिक में आई तो उसकी कंडीशन इतनी अच्छी हो गई थी तो मैं खुद उस पेशेंट को पहचान नहीं पाया था, ठीक है। पेशेंट के सीबीसी पैरामीटर जो है वो विद इन रेंज में थे, और ओवरऑल उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो उसका फ्रीक्वेंसी भी काफी कम हो गया था, ठीक है। उसके बाद शी सर्वाइव्ड फॉर 6 months बिकॉज एट द टाइम ऑफ बेसलाइन उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी पेशेंट की, बट डिस्पाइट ऑफ दैट शी सर्वाइव्ड फॉर 6 months एंड उसमें हमें मिनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा पेशेंट को देने के लिए। रिस्पॉन्स इवेल्युएशन में देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की इंप्रूव हुई थी। प्री ट्रीटमेंट इट वाज 22, पोस्ट ट्रीटमेंट इट वाज 80। इकॉग जो है पेशेंट का इट डिक्रीज फ्रॉम 4 to 2, मतलब जितना इकॉग ज्यादा उतनी कंडीशन इट इज नॉट गुड, एंड जितना कम उतना बेटर। क्वालिटी ऑफ डेथ जो है पेशेंट रिलेटिव्स जो थे दोज वर वेरी हैप्पी बिकॉज जिस कॉम्प्लिकेटेड या क्रिटिकल कंडीशन के साथ पेशेंट जा रही थी, विद दैट ऑल रिलेटिव्स वर डिस्टर्ब
but after when she lived for 6 months and that with minimal complications, her quality of death was also good and relatives were happy. Then ओवरऑल सर्वाइवल जो है पेशेंट का इट वाज 6 मंथ्स. ट्यूमर रिस्पॉन्स इज नॉट एप्लीकेबल. सिम्टम्स में हमें सब सिम्टम जो है फटीग, कैकेक्सिया, एडिमा, तो हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट उसमें दिखी थी. इट वाज नॉट कंप्लीटली गॉन बट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. वेट जो है पेशेंट का 44 से 52 हुआ था, मींस वेट गेन भी हमें देखने को मिला. जब पेशेंट बेसलाइन पे आई थी उस टाइम वहां पे पेडल एडिमा और हेवी मतलब स्वेलिंग होने के बावजूद उसका वेट 44 था. तो एक्चुअल वेट मस्ट बी 40, अराउंड 40. तो 40 to 52 means around 12 kg weight gain happened in the span of 6 months. ठीक है. और ट्यूमर ट्रांसफ्यूजन की जो फ्रीक्वेंसी थी अर्लियर इट वाज थ्राइस and after that it became monthly or fortnightly. So this is the response evaluation. Now we will go to case number 2, which is the case of renal cancer. A 77-year-old male patient with hypertension. He was diagnosed with the clear cell renal carcinoma. He was advised to undergo radical nephrectomy, but because due to his advanced age, his relatives refused it. क्योंकि एज ज्यादा थी पेशेंट की और ऐसे कंडीशन में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हमें सर्जरी नहीं करनी है, हमें सिर्फ सपोर्टिव मेडिसिन लेनी है. सो विद दिस वी स्टार्टेड आयुर्वेदिक मेडिसिन टू हिम. Again, these medicines were given. Somkalpa, it is a combination of classical drugs like Vanga Bhasma, Makar Dhwaj, Loha Bhasma, Suvarna Makshik Bhasma, Suvarna Bhasma, Hirak Bhasma. Agasthisom, which is a combination of Suvarna Bhasma, Suvarna Makshik Bhasma, Trailokya Chintamani, Raupya Bhasma, Makar Dhwaj, Abrak Bhasma. कौनता अभिक सूची इसके बारे में मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया है. देन शुद्ध शिलाजित भी दिया गया था पेशेंट को और नाक केशर भी दिया गया था टू स्टॉप हिमैचुरिया. तो ये सब मेडिसिन दिए पेशेंट को. दिस इज द पोस्ट ट्रीटमेंट पेट सिटी स्कैन. तो हमें इवेल्यूशन जो है वो एवरी 6 मंथ्स हम जो है जहां पे भी पॉसिबल है एवरी 6 मंथ्स हम इवेल्यूशन करते हैं. किसी केस में वो 8 मंथ या 10 मंथ्स भी हो सकता है. तो इसमें व्हाट वी कैन सी हियर in this PET CT scan, there is a stable size of kidney lesion with complete regression in the cancer activity. Means with the treatment ट्यूमर जो है वो completely vanish नहीं हुआ था वहां से. It was dormant, मतलब उसकी साइज ना कम हुई थी ना बढ़ी थी, बट उसमें जो एक एक्टिविटी है कैंसर पोटेंशियल जो होता है which can be analyzed with the help of SUV uptake, तो उसमें हमें अपटेक जो है वो कम यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है. तो यहाँ पे अपटेक जो है अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इट वाज प्रीवियसली 3.8 और बाद में हुआ है 1.84. तो जो रिस्क जो है या पोटेंशियल जो है ट्यूमर एग्रेशन की वो यहाँ पे डेफिनेटली हमें कम देखने को मिलती है. देयर हैज बीन नो सिंगल इंसिडेंस ऑफ हिमैचुरिया और यूटीआई टिल डेट. ठीक है. the patient is currently asymptomatic and fully active. All hematological and biochemical parameters like liver and kidney function parameters are absolutely normal. Response evaluation में देखेंगे तो फैक्ट जो है पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर इट हैड इंक्रीज फ्रॉम 61 to 100. मींस 100 means the patient was fully active. ECOG score decreased from 3 to 0. Again, the patient was fully active. Patient as he is alive, quality of death is not applicable. Then survival is 3 years and ongoing. मतलब 3 साल से पेशेंट अभी भी सर्वाइव कर रहा है. ट्यूमर रिस्पॉन्स जो है साइज उतनी है ट्यूमर की, बट मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स हमें वहां पे देखने को मिला विच हैज रिग्रेस्ड फ्रॉम 3.8 to 1.8. सिम्टम्स जो थे हिमैचुरिया एंड यूटीआई अभी नहीं है. वेट जो है पेशेंट का ऑलमोस्ट स्टेबल है. हालांकि 2 किलो लॉस, ही हैज लॉस्ट 2 kg वेट, बट इट इज इनसिग्निफिकेंट और क्लिनिकली नॉट सिग्निफिकेंट. ट्यूमर मार्कर यहाँ पे नहीं है. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतने सारे मेडिसिन देने के बावजूद भी एंड दैट टू इन द पेशेंट विद द रिनल कैंसर हमें कोई भी रिनल डैमेज जो है हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला. मींस जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में ब्लेम किया जाता है कि उसमें हेवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है उससे, तो वी हैव ट्रीटेड पेशेंट ऑफ रिनल कैंसर विथ so called heavy metals, and despite that there was no tumor response, but there was a no renal damage. ठीक है. तो ये ओवरऑल मैंने इसलिए केस यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि हमें देखना है
जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है कि अगर हम ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल द ट्यूमर ग्रोथ। मतलब विद दिस मेडिसिन या विद दिस अप्रोच हमने ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट को इतनी इफेक्टिवली मैनेज किया है, उसकी वहां का जो इरिटेटिंग नेचर था या इन्फ्लेमेशन था उसको इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया है कि ना ट्यूमर का ग्रोथ हुआ है, ट्यूमर की साइज उतनी ही रही है। ठीक है। लास्ट केस इज ऑफ द बी सेल लिम्फोमा। दिस इज द केस ऑफ 85 years male. He had a soft tissue lesion around superior mesenteric vein, जिसका साइज था अराउंड 7.5 सेंटीमीटर एंड द एक्टिविटी वाज 24.9। और उसके साथ साथ लेफ्ट इलियक नोड्स में जो है 20 mm का वहां पे इलियक नोड था, उसका एक्टिविटी था 17.1। He was diagnosed with the diffuse large B-cell lymphoma along with the type 2 diabetes, means he was diabetic from earlier. उसके बाद the patient had a medical history of CVA in 2019. तो ऐसे कंडीशंस में जब पेशेंट की एज भी ज्यादा है, ठीक है, मॉर्बिडिटीज भी ज्यादा है, मतलब डायबिटीज जैसी मॉर्बिडिटी है, देयर इज अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ कार्डियक इशू, ऐसे होने के बाद देयर वाज नो ऑप्शन अवेलेबल इन द एलोपैथी, ना कीमोथेरेपी दी जा सकती पेशेंट की, ना रेडिएशन दिया जा सकता था। ऐसे कंडीशन में ही चूज टू टेक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ओनली। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सोमकल्प, अगेन दिस इज द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, सो यहाँ पे यू विल सी डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इट वाज कंसिस्ट ऑफ द हिरक भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म, सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, सोमनाथी भस्म, सोमनाथी ताम्र भस्म, वंग भस्म, पुष्कराक्ष सोम which was containing सुवर्णमाक्षिक, सुवर्ण भस्म, जसद भस्म, सोमनाथी ताम्र भस्म, आमल की चूर्ण, कौंत अविक शुचि हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर। ठीक है। तो ये सब मेडिसिन पेशेंट को दिए, मेडिसिन देने के बाद दिस वाज अ रिजल्ट। दिस इज अगेन अ पेट सीटी स्कैन डन आफ्टर 6 months। ठीक है। तो here we can see there was a significant reduction in the size with metabolic resolution of the mesenteric nodal mass। जो भी superior mesenteric वेसल्स के यहाँ पे जो एक बड़ा मास था, तो वो जो है उसका रिडक्शन वहां पे हो चुका था, कंप्लीट रिडक्शन। देन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द साइज विद मेटाबॉलिक रेजोल्यूशन ऑफ द लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक नोड, जो एक 20 mm का नोड वहां पे पहले दिख रहा था, वो भी वहां पे कंप्लीटली गया था। कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ द स्प्लिनिक लीजन, जो एक स्प्लीन में एक लीजन था, एंड इंग्वाइनल नोड्स, वो भी दोनों चले गए थे। तो अगेन रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन पे आते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट का, फैक्ट स्कोर हैड इंक्रीज फ्रॉम 52 to 86, ECOG score decreased from, means actually it is improved from 3 to 1. Then patient is alive, quality of death is not applicable. Patient is disease free from 1 year 10 months and ongoing. Overall survival is 2 years. Okay, tumor response जो है 7.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर कंप्लीटली नील हो गया है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो पहले 24 अराउंड 25 थी, it has regressed. Now only there is a physiological uptake. अदर नोट्स भी कम हो गए हैं, सिम्टम जो है वो कम हो गए हैं। वेट जो है पेशेंट का, द पेशेंट हैज गेन वेट मींस 40 to 44। ट्यूमर मार्कर होता है LDH नाम का, उसका प्री ट्रीटमेंट लेवल वर 436, नाउ इट इज 200। तो दिस इज द रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन। तो ओवरऑल अभी ये तीनों केसेस लेने का मोटिव यही है कि हम एवरी टाइम यू हैव, मींस हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ट्यूमर रिस्पॉन्स ही कैंसर ट्रीटमेंट है। इसलिए मैंने तीनों केसेस लिए, जहां पे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का भी कंडीशन है, ऐसा भी केस लिया है कि जिसमें ट्यूमर ग्रोथ जो है बाद में नहीं हुई है, ट्यूमर वाज डोरमेंट, और मतलब साइज जो है ट्यूमर की उतनी है, और ऐसे भी केस लिए जिसमें कंप्लीटली वैनिश भी हो चुका है। तो now here I have treated these cases with the रसायन ट्रीटमेंट या रस औषधि जो है उनका हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मैंने इसमें किया है। बट इट इज नॉट नेसेसरी, everyone will use these medicines only. With your clinical experience and expertise, you can definitely choose medicines from your fraternity and branch. अगर आपको ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स पता है, क्या करना पता है, तो वेपन्स आपके पास, डिफरेंट वेपन्स आर अवेलेबल। You can treat patients with the दुषी विषारी अगत जो होता है उसके साथ भी आप ट्रीट कर सकते हो। I have seen many practitioners who are treating cancer with दुषी विषारी अगत only।
उसके बाद डिटॉक्स भी करते हैं, पंचकर्म की प्रोसेसेस करते हैं जहां जहां पे भी एप्लीकेबल हो। तो ऐसा सब करने से ओवरऑल जो हमारा एंटीटॉक्सिक अप्रोच जो होता है, तो उस अप्रोच से वी कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ द कैंसर। ओके, Thank you, sir. Sir, is the presentation over? yes. Okay. Now the session is open for any doubts or queries. You can raise your hand. I will unmute you. Or you can write in the chat box. Where the Amol Kadu has a question. 1 minute, sir. I will make you a contributor. So any question? Yes, sir. You can ask, sir. Dr. Amol, sir. You can unmute yourself, sir. You are made as a contributor. Okay, thank you, Dr. Anand, for this case-based presentation. Being as an assistant professor in the National Institute of Ayurveda, we have a cancer OPD, and we are evaluating the cancer patients also who are basically coming from the low economic status kind of a thing. So can you highlight those kind of the medications where we can, which could be a cost-effective kind of a thing, because there are so many the patients who are already taking the radiotherapy and the chemotherapy, and the symptom burden are so many are there, and the cost of the treatment is very, very important, because financially the patient is broke down, as the name suggests, by the cancer already he is died half. But because of this tedious process of the lots of investigations and all those things, the cost thing is very, very important. And as it initially goes to the allopathic system of the medicines, so already the cost is so much important in that kind of aspect. So can you highlight it, cost effective kind of the treatment, like Bhallatak Tela or Bhallatak Lavana, or kind of cytotoxic or the antitoxic medication, as you said, the Dushi Vishari Agada or Bilvari Agada we can use or incorporate, or medicated kind of a food which we can useful for making the symptom free life, so we can improve their quality of life also. So in that thing, I would like to hear your experiences related to these kinds of the domain which touches the cost effective management kind of a thing. So this is a really good and practical question, sir, because it's not possible every time for all cancer patients to take expensive medicines because they are already exhausted financially. But sometimes it becomes mandatory also, and it totally depends on the condition of patient. If patient is physically strong to receive panchakarma treatments, he can definitely receive panchakarma treatments, and toxic load can be definitely we can definitely unload that toxic profile, and after that patient can survive for a long. In medicines, means simple rasayanas like Chyawanprash is there, then Agastya Haritki is there. So those rasayanas can be used according to clinical condition. But if the condition is critical, in condition like tumor lysis syndrome, or the tumor has grown into liver or other vital sites, in that case it becomes mandatory to give medicines in order to get results in the shorter duration, because
time is also crucial in such patients. Okay, if we unnecessarily we are wasting time in means because of the financial burden. If you are not giving the proper treatment to the patient, that definitely patient will end up in the complications. So wherever possible, we can definitely use these rasa aushadhis, but also these other medicine rasayanas, okay, and panchakarma treatments can be equally effective if applied properly. And I will definitely think on that, and later I will provide you a list of medicines also which can be used in such conditions. Okay. And apart from cancer, there are also other conditions where active management is required. For example, hematuria in case of bladder cancer or kidney cancer. Okay. In that case, simply giving Nak Keshar will help. Okay. Or in case of colon cancer, simply giving Suran Vatak will definitely improve the condition. Hingvastak Churna will definitely improve the condition. So Are you, hello? Anand sir? So you are mute now. Anand sir? yeah. Can you Sir, hear? Yes. Yeah. So in that way, definitely we can give some cheap solutions to manage the condition effectively. Thank you. Sorry, if there is any other questions, you may ask. I have one request to the organizer. Can we plan a series of the lectures where we can take a specific type of a cancer or a specific type of a symptom burden? So accordingly, we can much more focus and we can discuss the things very clearly and very nicely. Because when we are sum up all the cases, so it's very difficult to understand because cancer is a very vast subject, and every system has a different medications and formulations, and in that too we have to find out the cost effective kind of the things like Patya Kalpana and all those things. So I would like to request the organizers to make a series of the lectures so that we can pick up a specific system of a cancer or the the palliative care management, what kind of the symptoms we usually face in the during the cancer treatment or without the cancer treatment kind of a thing. So the kind of the cost effective treatment modalities, if we discuss, that would be more better to propagate to the patients. So I think this is one of my suggestion. If the organizer feels it is convenient, so we will be continuously meet and discuss all those things. Yes, sir. We'll take the suggestion and we'll do the series as you have said. Any other questions? Congratulations, Dr. Anand Patil, sir. It is a very nice lecture delivered by you, full of knowledge and information. But I think your work is just a month before Parliament has approved one proposal about euthanasia in India. They propose there is a right to death with dignity is now allowed in India. And it is a passive euthanasia is allowed, and in the cases of cancer, though who are terminally ill and can't bear their pain, you are helping those people to have a dignified death with palliative care. So this work should be recognized by Government of India, I may request, and it is I'm very much thankful to you for your efforts and your knowledge, sir. Thank you. So ma'am, in outside India also, so quality of death is equally important in any disease, including cancer. So Except in Netherlands, there is a active euthanasia is allowed, and there is a registered registration is going on, and the pending is of 10 to 15 years of and that is the only country where active euthanasia is allowed. But in India, it is not denied, but it is allowed now Parliament to have a good and dignified death in India.
Yes, good. Thank you, ma'am. Any other questions? Okay, so I think we don't have any more questions. Sir, Okay. one question I have. Sir, please give some diet chart if you have prepared for your. Will you share with us? Yeah, just email me your details or message me. I will definitely revert back with the details you want. Thank you so much, sir. Please Thank share you it. so much. Yes, sir. Yes. Okay, hope the questions are over. So, respected Professor Dr. Dr. Anant Rao, sir, thank you for clearly explaining the complications related to chemotherapeutic agents, including Dagni Mandya, Dhatukshaya, Garavisha, and Dushivisha and tumor lysis syndrome. Your simple yet in-depth explanation of treatment-related toxicity and its management was extremely insightful. We truly appreciate the way you simplified complex concepts such as cytotoxic and antitoxic therapies for an Agatantra perspective and highlighted the importance of integrative treatment along with the roles of Rasa Aushadhis for the patient benefit. Sir, your case studies added great clinical value and helped us to connect theory with practice. Once again, thank you, sir, for your valuable time, guidance, and contribution. And a practitioner like you are the reason Ayurveda continues to be a source of pride and strength, sir. Thank you, sir. So let us conclude with the recitation of the Shanti Mantra, invoking the peace and harmony for all. Om Dhyau Shanti, Antariksha Shanti, Prithvi Shanti, Apa Shanti, Aushadhaya Shanti, Vanaspataya Shanti, Vishwe Deva Shanti, Brahma Shanti, Sarva Shanti, Shanti Reva Shanti, Samam Shanti Redhi, Om Shanti, 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 Om. Thank you, sir. So here we end the most knowledgeable session of today. Thank you to all the audience and our respected speaker. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very Thank much, you, sir. everyone. Thank you, sir. Team members for giving me opportunity to present. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Dr. Ankur, you can stop the recording and end the session. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.